Hello students, welcome to Big Academy. So as you know, we have started this thing after getting a lot of requests from many students to provide guidance for coming class 12 board examinations. Okay? So I will be covering our biology, some important topics and chapters that will come up in your exam. So we'll be starting with sexual reproduction in flowering plants. This is the first chapter of the biology NCERT book. Okay? A very important chapter for your examination. Important questions do show up from this chapter. Let's start. Now, what is the importance of reproduction? Why does an organism need to reproduce? The main reason is for the continuation of the species. If we look at us, humans, we humans are a species, a particular species. Now the thing is that imagine if we stop reproducing, because we all of us are going to die one day. Isn't it? All living beings die. None of us is immortal. We will die one day. Now if we stop reproducing, if there are no more children in the world, and all of us at one point of time when we'll die off, don't you think the species will end? स्पीशी कंटिन्यू ही नहीं होगी, सब मर जाएंगे, कोई पैदा ही नहीं होगा, वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. सो रिप्रोडक्शन इज मेनली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड इट फॉर कंटिन्यूटी. अ स्पीशीज नीड्स टू कंटिन्यू. अगर एक स्पीशी कंटिन्यू नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, एक पॉइंट पे जाके देयर विल बी नो कंटिन्यूटी, द स्पीशीज विल एंड. एंड द सेकंड रीजन इज जेनेटिक वेरिएशन. रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब होता क्या है, जो बच्चा होता है उसको माँ बाप दोनों का जीन मिलता है. And because of this two parent involvement, the child is born with a genetic variation. वो exactly अपने मम्मी जैसा भी नहीं होता, exactly अपने पापा जैसा भी नहीं होता. It's a mix of both, and this brings the genetic variety in a species. नहीं तो एक species में सब एक जैसे होंगे. If one person has a particular vulnerability in a species, all the organisms in the species will have the same vulnerability. It will be a big issue. Now, reproduction can be asexual, reproduction can be sexual. Asexual reproduction means where there is only one parent involved. And in sexual reproduction, you have two parents involved. Now, in plants, as you guys must have learned in class 11, in the plant kingdom, if we start from algae, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms, none of them are flowering plants. Angiosperms, in the end, are flowering plants. And that is why angiosperms mostly come up with this sexual reproduction. Why? Because they have the most developed sexual features among all the plant kingdom. एंजियोस्पर्म्स में एक चीज होता है कॉल्ड फ्लावर्स. ये फ्लावर कैसे इवॉल्व हुआ? फ्लावर इवॉल्व हुआ एज एन ऑर्गन दैट हैज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. फ्लावर में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशली बस प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए ही होते हैं. Now flower, as I said, as a reproductive organ, flower has the androecium. The androecium is the male part of the flower, and the gynoecium. The gynoecium is the female part of the flower. फ्लावर में कुछ फ्लोरल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कलर. फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल, लाल, पीला, नीला. दे हैव अ फ्रेग्रेंस, खुशबू होती है. फ्लावर्स हैव नेक्टर, इट्स अ सब्सटेंस जो फ्लावर में प्रोड्यूस होता है, वो इंसेक्ट्स दे टेक इट. एंड व्हाट डज इट डू? इट एड्स पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है हम आगे जाके देखेंगे. फ्लावर का ये रंग बिरंगा नेचर, फ्लावर का अच्छा खुशबू, फ्लावर का नेक्टर, ये फ्लावर में क्यों होता है? ताकि फ्लावर पॉलिनेशन कर पाए. We'll see this in detail as we go ahead. बायोलॉजिकल रोल क्या है फ्लावर का? बायोलॉजिकल रोल यही है कि फ्लावर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, which is the sex cells, the cells that are used for reproduction, the gametes. The male gamete and when the female gamete, when both of them fuse together, the fusion of the male and female gamete is known as the process of fertilization. Now, फ्लावर का काम है फर्टिलाइजेशन करवाना, ठीक है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हैपेंस इनसाइड द फ्लावर. एंड आल्सो सीड फॉर्मेशन. फ्लावर के अंदर सीड फॉर्म होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद द फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू द जाइगोट. जाइगोट इज अ वन सेल थिंग जो मेल और फीमेल गैमेट के कंबाइन होने के बाद बनता है. दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो. द एम्ब्रायो विल डेवलप इनटू अ सीड, एंड फ्रॉम दैट सीड we will get the new plant. As you can see, this is the structure of the flower.
Let's look at the parts of the flower now. ठीक है, flowers have the sepals. ठीक है, flowers have the sepals. These are the sepals. What do? They protect the bud of the flower, and then they have petals. Petals मतलब जो कलियां होती है फूल की, they are very colorful. What do? अब pollination के लिए you need insects. ये petals काफी colorful होते हैं, and this colorful nature of the petals they attract the insects. You have the stamen in the flower. This part, this thing is the stamen. Stamen क्या करता है? Stamen produces the pollen grains, जिससे आपका male gamete निकल के आता है. And you have the carpel. ठीक है, और the pistil. उसका काम क्या है? The pistil or the carpel. This is the carpel. This is also known as pistil. ठीक है, इसके अंदर you have the ovule. ओव्यूल के अंदर एग होता है. एग इज द फीमेल गैमेट. वो मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर जाता है और फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है. नाउ ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने बना के दे के रखे हैं फोटो में, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. बिकॉज ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चर्स टुगेदर वी गेट टू सी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ let's look at something known as floral initiation. What is floral initiation? Floral initiation means कि जो हमारा वेजिटेटिव मेरिस्टम होता है, vegetative meristem means the meristematic tissues of the plant. You might have studied the anatomy of plant in your class 11th biology, and there we talk about something called as the meristematic tissues. The meristematic tissues are those tissues which cause a growth in the plant. Meristem से plant ऐसा grow करता है, it grows out, elongates. ठीक है, now जो vegetative meristem होता है, जिससे प्लांट का नया हिस्सा निकल के आता है, द वेजिटेटिव मेरिस्टम डेवलप्स इनटू अ फ्लोरल मेरिस्टम. ठीक है, फ्लोरल इनिशिएशन इज बेसिकली नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ अ फ्लावर. प्लांट से जो फूल निकल के आता है दैट इज नोन एज द फ्लोरल इनिशिएशन. अब फ्लोरल इनिशिएशन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ फोटो पीरियड. फोटो पीरियड मीन सनलाइट. आपको कितना टाइम के लिए सनलाइट मिल रहा है. द टर्म फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स टाइम. So photo period means the amount of time for which you are receiving sunlight. ठीक है, amount of time for which you are receiving sunlight. तो जब प्लांट को adequate amount of time के लिए sunlight मिलता है, जब प्लांट को एक ideal temperature मिलता है, and when the hormones inside the plant that are responsible for making a flower are working properly, at that point of time the flower develops out of the plant. The vegetative meristem develops into the floral meristem. उससे फूल निकल के आता है. ठीक है, इट लीड्स टू इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है ये फ्लावर का जो ये बंद रहेगा फ्लावर शुरू में, ये खुल के एक पर्टिकुलर पैटर्न में इसके पेटल्स खुलेंगे. दिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस एंड इट लीड्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर. नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन. ठीक है, द स्टेमन हैज समथिंग कॉल्ड एज द फिलामेंट. अगर तुम देखोगे ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है. अब स्टेमन में दिस इलोंगेटेड थिंग, दिस इज द फिलामेंट, and above the filament you have the anthers. Anther is a bilobed structure. Bilobed and dithecous structure. अब bilobed का मतलब क्या है? Bilobed का मतलब है कि if you see carefully, this anther has two lobes and dithecous. क्यों? क्योंकि ये anther एक ही चीज है, बट ये बीच में से इसका पार्टीशन इसको दो टुकड़ों में बांट के रखा है. That is why it is dithecous. And bilobed, why? Because it has two lobes. ठीक है? Then inside the anther you have the pollen sacs जिसमें pollen grain produce होता है. Now there are certain wall layers. In wall layers का काम क्या है? To protect the stamen. ठीक है, what are the wall layers? The epidermis. ठीक है, epidermis के ऊपर you have the endothecium, then you have the middle layers, and then the last layer is the tapetum. ठीक है, now we'll come to a process known as microsporogenesis. Now what is microsporogenesis? ठीक है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जो पिस्टिल होता है, ठीक है, द पिस्टिल ऑफ द प्लांट, द पिस्टिल अंडरगोज मियोसिस. वी ऑल नो व्हाट इज मियोसिस. वी हैव स्टडीड दैट in class 11th, the cell chapter.
द सेल डिवीजन चैप्टर दैट इज देयर इन क्लास 11 नाउ। अब उससे क्या होता है, द पिस्टिल अंडरगोज मियोसिस एंड उससे यू गेट अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब है टेट्रा मींस 4, माइक्रोस्पोर टेट्राड मींस दैट यू गेट 4 माइक्रोस्पोर्स। उसके बाद मियोसिस से एक्चुअली होता क्या है, वी ऑल नो दैट मियोसिस में you must have studied in the class 11 cell division chapter that in meiosis जब meiotic division होता है तो कायस्माटा बोल के एक चीज फॉर्म होता है which is like a cross bridge between two chromosomes। उससे क्या आता है, दोनों क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं एंड दिस लीड्स टू हाइब्रिडाइजेशन, अ न्यू हाइब्रिड कैरेक्टर। तो मियोसिस से क्या होता है कि जैसे दो क्रोमोसोम्स के बीच में वो कायस्माटा बन के मिक्सअप हुआ, तो जो नया जेनेटिक मटेरियल होगा वो पुराने जेनेटिक मटेरियल से थोड़ा अलग होगा and that is why this leads to genetic variation। and as I said meiosis we all know meiosis restores haploidy, ठीक है, meiosis restores haploidy। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड फॉर्म होता है, दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड देन सेपरेट्स विद टाइम एंड सेपरेट होने के बाद उससे तुमको 4 इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स मिल जाते हैं। देन कमिंग टू द पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्लावर का जो मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट है उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और फ्लावर का जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। नाउ जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट इज द पोलन ग्रेन, ठीक है, इट हैज द एक्साइन व्हिच इज द स्पोरोपोलेरिन एंड द इंटाइन। एक्साइन इज द आउटर पार्ट, इंटाइन इज द इनर पार्ट। अब पोलन ग्रेन का काम क्या है, एक वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स होते हैं इसके अंदर। पोलन ग्रेन्स के अंदर कुछ वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स होते हैं। इनसाइड द पोलन ग्रेन यू हैव 2 मेल गैमेट्स। अब होता क्या है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ फ्लावर, कुछ फ्लावर्स में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, मतलब गिर जाता है, और कुछ फ्लावर्स में पोलन ग्रेन 3 सेल के स्टेज पे जाके इट गेट्स शेड ऑफ। नाउ द वायबिलिटी ऑफ द पोलन, मतलब पोलन ग्रेन तो है बट वेदर इट इज वायबल और नॉट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट वेदर द पोलन ग्रेन इज वायबल और नॉट? इट मीन्स कि जो पोलन ग्रेन है क्या वो काम कर पाएगा। पोलन ग्रेन का काम क्या होता है, टू गिव आउट द मेल गैमेट्स, और वो मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, यू विल गेट द जाइगोट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट कैन द पोलन ग्रेन वर्क करेक्टली। अगर पोलन ग्रेन खराब हो जाए देन वी से दैट द पोलन ग्रेन इज इनवायबल, एंड पोलन ग्रेन इज वायबल इट मीन्स दैट द पोलन ग्रेन कैन वर्क प्रॉपर्ली। कुछ कुछ प्लांट्स में जैसे राइस में पोलन ग्रेन का वायबिलिटी कुछ मिनट्स का ही होता है, मतलब आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वो पोलन ग्रेन खराब हो जाता है, इट इज नॉट वायबल एनीमोर। एंड इन प्लांट्स लाइक रोसाशिया उसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो महीनों तक वायबल रहता है, मतलब वो पोलन ग्रेन खराब होते होते उसको बहुत सारे महीने लग जाते हैं। अब पोलन ग्रेन को अगर बिना खराब किए हमें किसी जगह पे स्टोर करना है, then we can store it in liquid nitrogen which is very cold at a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। और हम पोलन ग्रेन को स्टोर क्यों करते हैं, फॉर ब्रीडिंग, ठीक है, हम पोलन ग्रेन को ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं कि हमने एक प्लांट से पोलन निकाल लिया, अब उसको हम दूसरे प्लांट्स में दे दे के रिप्रोड्यूस करवा के हम अपनी तरफ से ब्रीड करवा सकते हैं। कुछ लोगों को पोलन का एलर्जी भी होता है, यू मस्ट हैव सीन, कुछ लोगों के सामने आप फूल लेके जाओगे उनका नाक में सर्दी आने लगेगा, their eyes will become very teary, their hands will become itchy, their face will become itchy। This is because some people they have pollen allergy, उनका बॉडी पोलन ग्रेन से एलर्जिक होता है। नाउ लेट्स कम टू द पिस्टिल, ठीक है, द स्टेमन वाज द मेल पार्ट, नाउ विल कम टू द पिस्टिल, द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब पिस्टिल में यू हैव द स्टिग्मा, ये ऊपर का जो चीज है दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है, ऊपर का जो चीज है दिस इज द स्टिग्मा। होता क्या है, वो पोलन ग्रेन आके गिरता है इस स्टिग्मा पे, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के पॉलिनेशन से आता है स्टिग्मा, ठीक है। जैसे स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके अटका, ठीक है, ये पोलन ग्रेन फिर स्टिग्मा के थ्रू इस ट्यूब से होके ओव्यूल तक जाएगा। ये जो लंबा सा ट्यूब है
दिस ट्यूब इज नोन एज द स्टाइल। ठीक है, ये जो ट्यूब है, दिस थिंग, दिस इज द स्टाइल। इसके अंदर यू हैव द पोलन ट्यूब। ठीक है, वो पोलन ग्रेन एक्चुअली होता क्या है, जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके डिपॉजिट होता है, दैट पोलन ग्रेन देन स्टार्ट्स ग्रोइंग, एंड दैट पोलन, वो पोलन ग्रेन फिर लंबा होता जाता है, एंड दिस पोलन ग्रेन देन गोज इनटू अ ट्यूब नोन एज द पोलन ट्यूब। लेकिन ये पोलन ट्यूब पहुंचता कैसे है ओव्यूल तक? ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, दिस इलोंगेटेड थिंग नोन एज द स्टाइल। एंड अंदर यू हैव द ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स है। ठीक है, एंड ओव्यूल्स किस पे अटके हुए? ओव्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ प्लेस कॉल्ड द प्लेसेंटा। ये ओवेरी के अंदर यू हैव द प्लेसेंटा, द ओव्यूल्स आर कंटेन्ड ऑन द प्लेसेंटा। लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। अब जो ओव्यूल है वो मोनोकार्पिलरी हो सकता है, मोनोकार्पिलरी, या फिर मल्टी कार्पिलरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी फ्लावर में एक ही कार्पल है या पिस्टिल है, दैट फ्लावर इज नोन एज अ मोनोकार्पिलरी फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल्स है या मल्टीपल कार्पल्स या मल्टीपल पिस्टिल्स है, देन दोस फ्लावर्स आर नोन एज मल्टी कार्पिलरी फ्लावर्स। नाउ लेट्स गो इनसाइड द पिस्टिल, ओव्यूल में। लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। The ovule has certain parts called the funicle, the helium, the integuments and the micropyle। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर एक चीज होता है कॉल्ड द न्यूसेलस। ये देखो, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रायो सैक है जिसके अंदर वो एम्ब्रायो बड़ा होगा। एम्ब्रायो सैक के आसपास यू हैव समथिंग कॉल्ड द न्यूसेलस। ये न्यूसेलस का काम क्या होता है? देखो, एम्ब्रायो जब बड़ा होगा, एम्ब्रायो को बड़ा होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन एम्ब्रायो को इस न्यूसेलस से मिलता है। ठीक है, inside that you have the embryo sac. This embryo sac acts as the female gametophyte or the place where the female gamete is produced. Then we have the megasporogenesis. Megasporogenesis में क्या होता है कि meiosis के वजह से, because of the meiosis of the ovule, sorry, because of the meiosis of the stigma, we get megaspores। हमारा जो ये फीमेल एरिया है, यहाँ पे मियोसिस होने के कारण वी गेट मेगास्पोर्स। ठीक है, अब होता क्या है, जस्ट लाइक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यहां भी वी गेट 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, अब होता क्या है, इन 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है जो काम कर सकता है, और वो एक मेगास्पोर ही सर्वाइव करता है, बाकी के 3 मेगास्पोर्स दे गेट डिस्कार्डेड ऑफ। ठीक है, ये मेगास्पोर ही फ्यूचर में जाके इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायोसेक। ये मेगास्पोर ही फ्यूचर में जाके इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रायोसेक व्हिच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायोसेक। एज आई सेड, मियोसिस से मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, द मेगास्पोर विल फॉर्म, देयर विल बी 4 मेगास्पोर्स, आउट ऑफ व्हिच 3 विल गेट डिस्कार्डेड, 1 मेगास्पोर विल बी फंक्शनल। ठीक है, और वो एक जो मेगास्पोर रहेगा, that will start undergoing a mitotic division। ठीक है, माइटोसिस होगा उसमें। आई होप यू नो व्हाट इज माइटोसिस, क्लास 11 बायो के सेल डिवीजन में यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट। ठीक है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, इट विल डिवाइड इनटू 8 न्यूक्लियाई, मतलब उसमें 8 न्यूक्लियस हो। ठीक है, माइटोसिस के कारण होता क्या है, इट फॉर्म्स अ 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियस। अब तुम सोचोगे कि 7 सेल और 7 न्यूक्लियस होने चाहिए, 8 न्यूक्लियस कहां से आए? दिस इज बिकॉज इन 7 सेल्स देयर इज 1 न्यूक्लियस, बट जो 8वां सेल होता है, सॉरी 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 सॉरी, इन 6 सेल्स देयर इज 1 न्यूक्लियस ईच। तो 6 सेल्स में 1 न्यूक्लियस ईच, 6 न्यूक्लियाई हो गए। जो आखिरी 7th सेल है, the 7th cell has 2 nucleuses, it is dinucleated, and that is why 6 plus 8, 6 plus 2 8, and on the other hand you have 7 cells। अब एम्ब्रायो सैक के अंदर एक एग एपरेटस होता है, एंटीपोडल्स होते हैं, और सेंट्रल वॉल होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा,
we studied about the fact that कि pollen grain contains the male gamete and pollen grain produce होता है anther में in the stamen, and from the anther the pollen grain is taken to the carpel or the pistil. Pistil में the pollen grain lands on the stigma, and from the stigma the pollen grain starts to grow into a pollen tube which moves through the style and it goes into the ovary, into the ovule. ठीक है? But now the question arises कि pollen grain को एंथर से पिस्टिल तक लेके कौन जाएगा? ठीक है? तो ये जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन एंथर से लेके स्टिग्मा तक, स्टिग्मा विच इज अ पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ठीक है, एंथर से लेके स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर प्रोसेस है पोलन ग्रेन्स का, दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन तीन टाइप्स के हैं, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी. अब we also have something called the क्लाइस्टोगैमी. क्लाइस्टोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट करता है, ठीक है, वो फ्लावर खुद ही पोलन बनाएगा और फ्लावर खुद ही पोलन को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाएगा इन द स्टेम, सॉरी इन द पिस्टिल. अब पॉलिनेशन के अलग अलग तरीके, वी हैव समथिंग कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन ले जाके दूसरे फ्लावर में देना, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. एंड सेल्फ पॉलिनेशन मींस उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर में जाएगा, which means the pollen grain is taken from the anther of one flower and it is delivered to the stigma of the same flower, that is self pollination. And cross pollination is the pollen grain is taken from the anther of one flower and it is delivered to the stigma of another flower. Now abiotic pollination, जब भी ये pollination यानी pollen grains का जो ट्रांसफर है, जब भी ये प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू होता है, वी कॉल इट एज एबायोटिक. एबायोटिक मींस नॉन लिविंग. अब नॉन लिविंग एबायोटिक सोर्सेस क्या क्या है पॉलिनेशन के? विंड, ठीक है, अगर पोलन ग्रेन्स का वेट बहुत ही हल्का है, इफ दे आर वेरी लाइट, और एंथर्स अगर प्रॉपर्ली हवा में एक्सपोज्ड है, खुला हुआ एंथर है एकदम, ठीक है, और स्टिग्मा भी एकदम फेदरी सा है कि एकदम से पटक जाएगा उसमें पोलन ग्रेन जाके, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन हवा से उड़ जाता है, हवा से उड़ के वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आ जाता है. या फिर वाटर, वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम लाइक इंस्टेंसेस पे होता है ये, ठीक है. जो भी पोलन ग्रेन्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, दो, अब देखो पानी में पोलन ग्रेन डालने से खराब हो सकता है ना ग्रेन, पोलन अगर पानी में डूब जाएगा तो खराब हो सकता है. तो जो भी पोलन पानी के थ्रू ट्रांसफर होता है, फॉर प्रोटेक्शन दोस पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड म्यूसिलेज. अब वाटर पॉलिनेशन किस किस में दिखता है हम लोग को? वी सी इट इन वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिल. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड बायोटिक पॉलिनेशन. बायोटिक पॉलिनेशन होता है कि जब भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कोई लिविंग थिंग करे, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करे उसको, देन वी कॉल इट एज बायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है. अब लिविंग थिंग्स कैसे? फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, जब ऐसे लोग पोलन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वी कॉल इट एज बायोटिक पॉलिनेशन. अब बायोटिक पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर को कुछ एडेप्टेशन चाहिए. तो कुछ तो ऐसे देखो, इंसेक्ट जो फ्लावर के पास जाएगा, फ्लावर से पोलन ग्रेन लेगा और ले जाके दूसरे फ्लावर में रखेगा उसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट होना पड़ेगा ना फ्लावर की, क्या मस्त फ्लावर है, चलो सुंदर फ्लावर है, जाके बैठता हूं वहां पे. होता क्या है कि फ्लावर नेक्टर डेवलप कर लेते हैं, उनका एक बहुत ही बढ़िया सा फ्रेग्रेंस आ जाता है एंड काफी कलरफुल होता है, इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल मक्खी, मधुमक्खी, वो जाके फ्लावर का ऐसा सुंदर रूप देख के वो फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है और नेक्टर चूसता है. नेक्टर लेते टाइम पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जाते हैं, और वो हनी भी जब दूसरे फ्लावर में जाके बैठता है नेक्टर लेने के लिए, तो उसके बॉडी पे जो पोलन ग्रेन्स लगे हुए थे वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चिपक जाते हैं. And then we know the process. Pollen grain will grow through the style and it will enter the ovary. Now,
वी हैव समथिंग सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, फ्लावर्स में अगर बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हो गया, इनब्रीडिंग मतलब कि सेम फ्लावर खुद ही के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसी सेम फ्लावर पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। अगर फ्लावर्स ने ज्यादा इनब्रीडिंग कर दिया कि सेम फ्लावर खुद ही के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है, उससे दिक्कत क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, वो एक ही फ्लावर के बहुत सारे कॉपीज बनते चले जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई टू मच ऑफ इनब्रीडिंग इज नॉट गुड। तो इनब्रीडिंग को रोकने के लिए we do have some outbreeding devices. Why outbreeding devices? To make sure that कि फ्लावर में जेनेटिक वेरिएशन है, ऐसा ना हो कि इनब्रीडिंग करते करते वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक चलता आ रहा है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे कैसे होते हैं? डाइकोगैमी, हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है। नाउ फ्लावर्स कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स जिसमें या तो मेल वाला पार्ट रहेगा या तो फीमेल वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। अब अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तब तो उसका खुद के साथ सेल्फ पॉलिनेट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा पार्ट, अगर एक, मान लो एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट, देन इट इज फॉर श्योर कि वो खुद के साथ पॉलिनेट कर ही नहीं सकता, उसका पोलन किसी दूसरे फ्लावर में जाना पड़ेगा जहां उसको फीमेल पार्ट मिलेगा। एंड दैट इज वाई अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, इन दैट केस क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलमोस्ट गारंटीड, क्योंकि वो खुद के साथ तो कर नहीं पाएगा रिप्रोड्यूस। नाउ द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। व्हाट इज द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन? जैसा कि मैंने कहा, जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से निकलेगा, एंथर से वो जाएगा by the process of pollination from the anther, the pollen grain will move to the stigma. स्टिग्मा कंपैटिबिलिटी चेक करेगा कि whether this pollen grain is compatible for reproduction or not. If the pollen grain gets approved by the stigma, then क्या होता है? pollen grain का germination होता है। What is pollen germination? वो जो pollen grain है वो स्टिग्मा से नीचे ग्रो होना शुरू होगा, और ये जो लंबा होता जाएगा ना pollen grain, this thing is known as a pollen tube. ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा से ग्रो होते होते स्टाइल के थ्रू अंदर जाएगा एंड इट विल गो इनटू द ओव्यूल, इट विल बी गाइडेड इनटू द ओव्यूल। ठीक है। अब फ्लावर के अंदर जाने के बाद, ओव्यूल के पास जाने के बाद, ठीक है, देयर विल बी थिंग्स, सम स्ट्रक्चर्स नोन एज सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स क्या करेंगे? ये पोलन ट्यूब को गाइड करके ले जाएंगे टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस। यही सी जगह पे जाके पोलन ट्यूब को फीमेल गैमेट मिलेगा, द एग। फिर उसके बाद क्या होगा? पोलन ट्यूब के अंदर से मेल गैमेट निकलेगा और वो जाके फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करते हैं। नाउ प्लांट्स हैव समथिंग कॉल्ड अ डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? एज आई सेड, पोलन ग्रेन के अंदर से यू विल गेट टू मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट क्या करेगा? एक मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज कर देगा एग को एंड इट विल फॉर्म द जाइगोट। और जो दूसरा है, देखो, जो पहला वो है, फर्टिलाइजेशन में दो चीजें हो रही है। सिनगैमी, सिनगैमी में क्या हो रहा है? मेल गैमेट इज कंबाइनिंग विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। उसके अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? ओव्यूल में देयर इज द न्यूसेलस, राइट? इट इज अ डिप्लॉयड थिंग। ठीक है। और जो मेल गैमेट आता है, इट इज अ हेप्लॉयड थिंग, एन, एंड द न्यूसेलस इज ट्वाइस है, इट इज डिप्लॉयड। तो जो हेप्लॉयड मेल गैमेट होगा वो जाके न्यूसेलस के साथ मिक्स हो जाएगा और ट्रिप्लॉयड और हैप्लॉयड मिलके, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मिलके इट विल फॉर्म समथिंग ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ 3n, व्हिच इज अ ट्रिप्लॉयड थिंग, एंड दिस ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज नोन एज एन एंडोस्पर्म। एंड सिंस यहाँ पे ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वी कॉल इट एज ट्रिपल फ्यूजन। ये एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? ये एंडोस्पर्म जाइगोट के पहले फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाइगोट जब बन जाएगा, जाइगोट को चाहिए होगा न्यूट्रिशन, और जाइगोट को न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से मिलेगा। अब ये जाइगोट इट विल डेवलप इनटू समथिंग नोन एज एन एम्ब्रायो। अगर एम्ब्रायो का एक ही कोटिलेडन है,
वी कॉल इट एज अ मोनोकोटिलेटन। अगर एम्ब्रायो में दो कोटिलेटन्स है, वी कॉल इट एज डाइकोटिलेटन। ठीक है। अब होता क्या है, जो ओवेरी है, द ओवेरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर रिप्रोडक्शन। अब फ्रूट कैन बी ट्रू फ्रूट और अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जो होता है, दीज आर दोज फ्रूट्स दैट डू नॉट हैव अ सीड। ऐसा फल जिसमें कोई बीज नहीं। ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। देन वी हैव टू मोर थिंग्स कॉल्ड एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। ठीक है। अगर किसी प्लांट में सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए, दिस पर्टिकुलर स्पेशल प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है। अब सेकेंड वी हैव समथिंग कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायोनी। पॉलीएम्ब्रायोनी मतलब कि यूजुअली क्या होता है, एक सीड में एक ही एम्ब्रायो होता है which develops into a plant. पॉलीएम्ब्रायोनी में क्या होता है, एक सीड में there are more than one embryos. There are more than one embryos. So this leads to cloning. Why? एक सीड से बहुत सारे एम्ब्रायो निकले, सारे एम्ब्रायो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, and it makes many clones out of one seed. Now there are some questions here. ठीक है। There are some questions here, NCERT questions that may show up in your exam. I'll discuss some of them with you and I'll leave the others to you so that you can see and solve them on your own. First question is, name the parts of an angiosperm flower in which development of male and female gametophytes take place. For this, you have to name the different parts, which is the stamen and the pistil. You have to then further list down इस stamen में क्या क्या parts होते हैं, the filament and the anther. Pistil में क्या क्या होता है, the stigma and the style. Then inside you have the ovary, there you have the ovule, you have the placenta, you have the filiform apparatus. You inside that you have the embryo sac which contains the embryo. अब इन parts में से गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, थ्रू मेगा एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट कैसे होता है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। डिफरेंस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आल्सो हैज 4 स्पोर्स, मेगास्पोरोजेनेसिस आल्सो हैज 4 स्पोर्स। डिफरेंस ये है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ऑल द 4 स्पोर्स आर फंक्शनल, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में सिर्फ एक ही स्पोर फंक्शनल होता है, द रेस्ट ऑफ द 3 स्पोर्स आर डिस्कार्डेड। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इट इज meiosis. Microspores and megaspores are formed as a result of meiosis, not mitosis. अब कुछ इवेंट्स दिए गए हैं and you have been asked to arrange these events in a correct order. ठीक है। क्या क्या होता है, सबसे पहला dehiscence of anther. एंथर पे पोलन निकल के आएगा। ठीक है। देन द पोलन गोज टू द स्टिग्मा, जहां से इट गेट्स जर्मिनेटेड इनटू अ पोलन ट्यूब। ठीक है। फिर वो पोलन ट्यूब अंदर अंदर ओव्यूल में जाता है, फिर ओव्यूल से वो पोलन ट्यूब इट गोज इनसाइड द एम्ब्रायो। करेक्ट सीक्वेंस इज बी सी ए डी। देन इट्स अ डायग्रामेटिक क्वेश्चन कि एक एंजियोस्पर्म में ओव्यूल कैसा होता है, उसका एक लेबल डायग्राम बनाओ। प्लीज प्लीज, बायोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, you have to know the diagrams of all the important topics, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। Then what is meant by monosporic development of female gametophyte? It means that there are 4 gamete, there are 4 spores, 4 megaspores produced by meiosis. Out of those 4, 3 are discarded and only 1 is functional. Since 1 is functional, we call it monosporic. With the help of a diagram again, फीमेल गैमेटोफाइट का 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट नेचर का एक डायग्राम बनाने बोला है। ठीक है। There are some other questions here as well. If you want, you can screenshot them. ठीक है। And you can try to solve them on your own. And you can also come up with doubts on these questions in the comment section below. And I am here to solve it. All of us, our subject matter experts, are here to solve it. ठीक है। I hope this was an informative video, a helpful video. ठीक है। Thank you so much. We'll meet again in the next video. And all the best for your upcoming board exams. Thank you so much. Jai Hind.